Good morning, everyone. I am your teacher, Hemda Yadav, and we will be doing class 12 biotechnology. Chapter which was we were doing was animal cell culture. I have shared the screen with you. I hope it is visible to you. Medium, we were doing various components of the animal cell culture, and in that we were reading about the medium. Most commonly varied factor in culture system is the growth medium. Means the growth of the organism of animal, which animal cell we are culturing will be depending on the growth medium. Medium is a mixture of inorganic salts and other nutrient capable of sustaining the cell survival in vitro. तो मीडियम इन चीजों का मिक्सचर होता है, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट और दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि सेल को सरवाइव कराते हैं laboratory condition में. Having the correct nutrient mixture can often be the determining factor in failure or success in the cell culture. और सही न्यूट्रिएंट मिक्सचर है यही डिटरमाइन करेगा कि हम कितने सक्सेसफुली सेल को कल्चर कर सकते हैं. The medium provide essential nutrients that are important into dividing cells such as amino acids, fatty acids, sugars, iron trace elements, vitamins, cofactors, and iron necessary for maintaining the proper chemical environment of the cells. So medium में ये सारी चीजें भी होती हैं जैसे कि फैटी एसिड, शुगर्स, आयन, ट्रेस एलिमेंट्स, कोफैक्टर्स, जिससे केमिकल इन्वायरमेंट सेल का अच्छा रहता है. एंड सम कंपोनेंट में परफॉर्म बोथ रोल्स. फॉर एग्जांपल, द सोडियम बाइकार्बोनेट में बी यूज्ड एज अ कार्बोनेट सोर्स but also may play an important role in maintaining the appropriate pH and osmolality. So बाइकार्बोनेट दोनों रोल प्ले करता है. वो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का भी सोर्स बनता है और इम्पोर्टेंट रोल भी मेंटेन करता है पीएच मेंटेन करने में. ऑल मीडिया कंटेन energy source, usually glucose. Many of the media contain phenol red as a pH indicator, and this is very helpful in monitoring the pH of culture medium in an incubator. Highly acidic condition turn the phenol red into yellow, while highly alkaline condition turn the phenol red into pink color. फिनॉल रेड एज अ पीएच इंडिकेटर भी मीडिया में डाला जाता है जिससे कि मॉनिटर कर सकते हैं हम पीएच कल्चर मीडियम का इंक्यूबेटर में. अगर ज्यादा एसिडिक होता है तो फिनॉल रेड येलो बन जाती है और अगर बेसिक होता है तो फिनॉल रेड पिंक कलर की हो जाती है. सीरम एंड एंटीबायोटिक्स. सीरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि एनिमल सेल कल्चर में यूज होता है as it can support cells proliferation, their attachment to culture vessel. सीरियम की वजह से ही सेल कल्चर वेसल्स में अटैच हो पाते हैं. Now they promote healthy growth and are often derived from animal blood, just fetal पेप्टाइड हॉर्मोन्स में ग्रोथ फैक्टर्स की तरह हेल्दी ग्रोथ जैसे कि फीटल ब्लड से अगर हमने रिलीज करवाए हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर मिलेंगे. जैसे एग्जांपल में दे रखा है कि वी आर हैविंग fetal bovine serum. Fetal bovine serum, FBS serum, is a source of various amino acids, hormones, lipids, vitamins, polyamines, and salts containing ions such as calcium, chloride, ferrous, ferric, potassium. Current practice is to minimize using blood-based supplements and switch to serum-free medium due to the some complication of FBS usage. So अब करंटली ऐसे सप्लीमेंट्स को स्विच करा जा रहा है जिसमें जो सीरम फ्री हो उनको यूज किया जा रहा है क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं फीटल ब्लड सीरम के यूज के. Although not required for cell growth, antibiotics such as penicillin, streptomycin are often used in culture medium to control the growth of the bacteria and fungal contaminants. हम मीडियम में वैसे तो एंटीबायोटिक्स डालते नहीं है बट अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं बैक्टीरिया फंगस कंटामिनेशन को तो हम थोड़ी एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं. वेसल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनिमल सेल कल्चर. Culture should be examined daily for their morphology, culture of the medium and density of the cells. इनके लिए कल्चर को डेली मॉनिटर करना जरूरी है कि सेल की शेप क्या है, कल्चर के कलर क्या है मीडियम का और डेंसिटी क्या है सेल्स की. Animal cells are usually grown and maintained in petri dishes. और animal cells को usually grow और maintain किया जाता है petri dishes में.
कल्चर फ्लास्क और मल्टी सेल वॉल प्लेट्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, अलग अलग प्लेट्स की शेप और साइज की प्लेट्स आती हैं, उनमें किया जाता है at an appropriate temperature and gas mixture, typically 37 to 5 degree CO2 for mammalian cells in an incubator. Culture conditions vary widely for each cell type. 5% CO2 for mammalian cells in an incubator. Culture conditions vary widely for each cell type, and variation of condition for a particular cell type can result in different phenotypic expressions. So यहाँ पर अलग अलग तरह के phenotypic expression भी देखे वेसल्स और एक्सेसरीज आपने देख ली एनिमल सेल कल्चर के लिए। अब सेल कल्चर लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे टिश्यू कल्चर हुड होना चाहिए, CO2 इंक्यूबेटर होना चाहिए, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज फॉर डूइंग एनिमल सेल कल्चर वर्क। टिश्यू कल्चर हुड के अंदर ऑल टिश्यू कल्चर सेल कल्चर मैनिपुलेशंस मस्ट बी परफॉर्म्ड aseptically without any bacterial or fungal contamination. Otherwise, animal cell culture media can easily get contaminated. कोई भी सेल टिश्यू कल्चर मैनिपुलेशन है तो उसे एसेप्टिकली रखना करना चाहिए। हमें कुछ भी बीच में कोई भी प्रोसेस करना है, अगर हमारे सेल कल्चर ग्रो हो रहे हैं, हम उन्हें नए मीडिया देना चाहते हैं या हम उनके अंदर कुछ नया हार्मोन या न्यूट्रिएंट डालना चाहते हैं, तो हमें ऐसे फूड के अंदर ऐसे वीकेंड से चेम्बर के अंदर इनोकुलेशन करना पड़ेगा जो बिल्कुल स्टेराइल हो, जो कहीं से भी बैक्टीरिया और फंगस की कंटामिनेशन से पूर्ण ना हो। So without any contamination, we have to do the manipulations so that हमारा सेल कल्चर कंटेमिनेट ना हो। टिश्यू कल्चर फूड इस काम के लिए आता है, maintain the sterile conditions of the cell, and now next बैक्टीरिया फंगी उसमें ग्रो नहीं हो पाते, प्योर कल्चर हमें मिलता है। द लैमिनार एयर फ्लो LAF food allows the work area to be free of such contamination. LAF food work area को फ्री करवाता है ऐसे कंटामिनेशन से। LAF food essentially perform two function, तो फंक्शन ये करता है लैमिनार एयर फ्लो हुड, जिसके अंदर प्रोटेक्ट द टिश्यू कल्चर फ्रॉम द ऑपरेटर बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेराइल एनवायरनमेंट। प्रोटेक्ट करता है टिश्यू कल्चर को ऑपरेटर से भी, ऑपरेटर भी उसे कंटामिनेशन नहीं करता, एंड प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पॉसिबल इन्फेक्शन रिस्क डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल टिश्यूज बीइंग handled, especially infective agents. The biology safety cabinets are designed as class 1 to class 3rd. The LAF could have continuous displacement of air that passes through a high efficiency particle air HEPA filters that removes the particulates from the air. So क्लास 1 और क्लास 3 सेफ्टी कैबिनेट्स भी होते हैं, जिनके अंदर जो हेपा फिल्टर्स होते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स उनके अंदर लगे हुए होते हैं, जो वुड के सब अंदर ऐसी एयर को, लेमिनार एयर को फ्लो करते हैं जो कि स्टेरलाइज होती है, और उन वुड की सरफेसेस को भी हमें क्लीन रखना होता है यूज के पहले। CO2 इंक्यूबेटर्स डिजाइन करे जाते हैं to reproduce as closely as possible the environmental condition of living cells. The essential function of the incubator to maintain the sterility of the chamber, a constant temperature and atmosphere with a fixed level of CO2 and high relatively humidity. CO2 incubators के अंदर high रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी जाती है, अ पैन ऑफ वाटर रखा जाता है हमेशा इंक्यूबेटर के अंदर टू मेंटेन हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, prevent desiccation of the culture medium and maintain correct osmolarity. The animal cells are grown in the atmosphere of 5 to 10 CO2 because the medium used in buffer with sodium bicarbonate, carbonic acid, and the pH must be strictly maintained. 5 to 10% CO2 इसके अंदर रहती है।
Centrifuge for most cell culture, only low speed centrifuge are required. A gentle braking action help prevent disruption of the separated bands of the cell. In most cases, cells should be centrifuged at 20 degrees Celsius. Nevertheless, low operation temperature is useful to avoid exposing cells to uncontrollable high temperatures. So most cell culture low speed पे centrifuge किए जाते हैं. Gentle braking action हेल्प करता है डिस्ट्रप्शन करने का. सेल को सेपरेट बैंड में मिल जाते हैं. इन केसेस सेंट्रीफ्यूज को 20 डिग्री पे किया जाता है. ज़्यादा लो टेम्परेचर को नहीं यूज करते. अवॉइड एक्सपोजिंग सेल टू अनकंट्रोलेबल और हायर पे भी नहीं भेजते. कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेल लाइन्स. सेल लाइन्स को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? इन ऑर्डर टू एनालाइज द ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर सेल टाइप्स और सेल लाइन्स, ग्रोथ कर्व को हम स्टैब्लिश करते हैं. From which one can obtain a population doubling time, a lag time, and a saturation density. तो तीन चीज हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं. हम जब सेल को ग्रोथ कर्व में देखेंगे तो वी कैन फाइंड द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, लैग टाइम, हमें ये सब मिलता है. That is the time is taken to the cell to recover from the subculture, attach, spread, and log phase, in which the cell number begins to increase exponentially in plateau phase, in which the growth rate slows or stops due to the depletion of growth factors and nutrients. So इस तरह के हमें लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी और वी कैन से प्लेटिव फेज मिलता है. तीन फेज हमें मिलते हैं. प्लेटिव फेज, लॉग फेज जिसमें कंटिन्यूअस कल्चर हो रहा है, और सबसे स्टार्टिंग में हमें लैग फेज मिलता है. 3 फेजेस हमें इस कल्चर ग्रोथ कर्व में मिलते हैं. An increase in cell number is also a frequently used method of assessing the effects of hormones, nutrients, and so forth on specific cell type. The cell culture doubling time allows prediction of the likely cell concentration at any time in the future. कल्चर का डबलिंग टाइम हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि सेल की कंसंट्रेशन कितनी होगी किसी भी एक टाइम में फ्यूचर में. नाउ यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रखा है. सीडिंग कंसंट्रेशन दिखा रखी है और एस शेप का रफली सिग्मोइड कर्व यहाँ पे हम देख रहे हैं. तो सबसे पहले लैग फेज दिखा रखा है. दिस इज द लैग फेज, द स्टार्टिंग लो फेज, एंड देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग फेज, and then again it will become constant at the stationary phase. सैचुरेशन जब रीच हो जाता है तो सैचुरेशन डेंसिटी रीच होने के बाद प्लेटिव फेज आ जाता है ग्रोथ में. और स्टार्टिंग में भी जब मीडियम न्यू न्यू रहता है तो सेल्स को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो लैग फेज आ जाता है स्टार्टिंग में, जो स्लो फेज होता है ग्रोथ का. फिर जब एक बार वो एडजस्ट हो गए तो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्रोथ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वे में ग्रो करेगा डबलिंग टाइम में. There are laboratories and institutions which maintain various cell lines for scientists to use. Example are American Type Culture Cell Collection or ATCC, Virginia, USA. तो अमेरिकन टाइप का कल्चर कलेक्शन ATCC वर्जीनिया यूएसए में है. यहाँ साइंटिस्ट ने सेल लाइंस को मेंटेन करके रखा हुआ है. The advantage of using the established cell line is that the growth characteristics of the media requirement and responses to selected reagents are established, and therefore convenient होता है साइंटिस्ट को यूज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एडवांटेज यही है कि उन्होंने ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स को, सेल लाइंस को, मीडिया रिक्वायरमेंट को, रिस्पॉन्सेस को उन्होंने क्या एस्टेब्लिश कर चुके हैं वो सेल लाइन के साथ, और अब उन्हें इजी पड़ता है. हाउएवर इट, पर उसके साथ साथ once a cell line has been established, its karyotype has to be determined. उसके karyotype को तो determine करना पड़ेगा. That this will confirm the specific species of origin, at least for those cells karyotype, and determine the extent of gross chromosomal changes in the line. तो कैरियोटाइप करने से हमें क्रोमोसोम मिल जाएंगे एंड डिटरमाइन करेगा वो हमारा एक्सटेंट ऑफ ग्रॉस क्रोमोसोमल चेंजेस इन द लाइन, कितने चेंज होंगे लाइंस में,
वो भी हम देख सकते हैं। कैरियोटाइप में वेरी फ्रॉम बीइंग नियर नॉर्मल, दैट इज वास्ट majority of cell in the culture have normal karyotype, to being aneuploid, और aneuploid तक हो सकता है karyotype. While a normal karyotype is desirable, the presence of abnormal karyotype does not preclude using the cells for in vitro studies. अगर नॉर्मल karyotype मिल रहा है तो ठीक है, बट अगर नॉर्मल नहीं मिल रहा तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं. We can preclude it and we can do the cell culture. Then special care must be taken in handling the cells to minimize chromosomes. हमें पर आगे के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कैरियोटाइप में क्रोमोसोम्स को चेंज नहीं करना है. द स्टेबिलिटी ऑफ कैरियोटाइप डिपेंड ऑन द स्पीशीज फ्रॉम विच द सेल्स वर टेकन. ये इस पर डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज से हमने क्रोमोसोम्स लिए थे. द ग्रोथ कंडीशन यूज्ड, कौन सी कंडीशन में हम उन्हें ग्रो करा रहे हैं. एंड द वे इन विच द सेल्स आर सब कल्चर्ड, सेल किस तरह से सब कल्चर किए जा रहे हैं. वेदर और नॉट सेल्स आर फ्रोजन, फ्रोजन तो नहीं किए गए हैं. तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि कैरियोटाइप कैसे वेरिएट करेगा कि नहीं करेगा वेरिएशन के अंदर. स्टोरेज एंड रिवाइवल ऑफ सेल्स. Liquid nitrogen is used for storing the cells at very low temperature, -180 डिग्री सेल्सियस to -196 डिग्री सेल्सियस, स्टोरेज के लिए और रिवाइवल के लिए सेल्स को बहुत ही कम टेम्परेचर 180, -180 और -196 डिग्री पे रखा जाता है, जिसे लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कहते हैं. Cells stored at liquid nitrogen temperature because the growth of ice crystal is retarded below 130 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि सेल इसमें प्रिजर्व इसलिए रहते हैं क्योंकि आइस क्रिस्टल जो -130 से नीचे होते हैं वहां पर फ्रीजिंग कैन बी लीथल टू द सेल्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डैमेज बाय द आइस क्रिस्टल्स, अल्टरेशन इन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, dehydration and changes in the pH. To minimize the effect of the freezing, cryoprotective agent डाला जाता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO एडिट किया जाता है, ग्लिसरॉल डाला जाता है. ये एंटी फ्रीज एजेंट होते हैं. टिपिकली फ्रीजिंग मीडियम इज 90% सीरम, 10% DMSO डाल दिया जाता है और 90% सीरम रहता है. फर्दर इट इज डिजायरेबल टू यूज हेल्दी सेल्स दैट आर ग्रोइंग इन द लॉग फेज एंड टू रिप्लेस द मीडियम 24 आवर्स बिफोर फ्रीजिंग. तो सेल्स भी हेल्दी और लॉग फेज में होने चाहिए जब उनको हम अगर क्रायो प्रिजर्व कर रहे हैं तो मीडियम 24 घंटे पहले रिप्लेस करना है उनको मीडियम 24 आवर्स बिफोर फ्रीजिंग. ऑल्सो द सेल्स शुड बी स्लोली कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू -80 डिग्री को पहले स्लोली कूल किया जाता है टू अलाउ द वाटर टू मूव आउट ऑफ द सेल बिफोर फ्रीजिंग, जिससे वाटर उसका बाहर निकल जाए फ्रीजिंग से पहले. नाउ द रिवाइवल, द फ्रोजन सेल जब हम नया एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे तो उन्हें थॉ करना पड़ेगा रैपिडली possible by placing the vials containing into them into 37 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ पे विद मॉडरेट शेकिंग. हम अगर गर्म इन्वायरमेंट में रखते हैं तो रिवाइवल हो जाता है सेल का. दिस इज टू मिनिमाइज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, और आइस क्रिस्टल भी नहीं बनते हैं which may damage the cell. After thawing, the cells can be transferred directly into the tissue culture vessel. इनके बाद डायरेक्टली सेल टिश्यू कल्चर वेसल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. Methods of gene delivering to the cells. A number of methods have been developed over the years for efficient transfer of the genes in the cells culture. Some common method of plasmid DNA transfection are outlined. DNA transfection जैसे होता है वो नीचे दे रखा है. Calcium phosphate. Here Happy's buffered saline solution is mixed with the calcium chloride solution containing the DNA for transfection to form a fine precipitate of calcium phosphate with DNA. तो यहाँ पर बफर सलाइन सोल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन डाला जाता है जिसके अंदर डीएनए होता है फॉर ट्रांसफेक्शन टू फॉर्म फाइन प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बन जाती है. The suspension of the precipitate is then added to the moon layer of the cells. The cells take up the calcium phosphate DNA complexes by endocytosis and express genes. सो लास्ट में आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के वक्त कैसे आप एनिमल सेल्स के अंदर डीएनए पहुंचाओगे, फॉरेन डीएनए, वो स्टेप्स बताऊंगा. तो उसमें अभी हमने एक पढ़ लिया to the calcium mediated
coating and the chemical method we have studied now. Liposuction, in this case, the gene is transferred with the help of tiny vesicles by the bipolar phospholipid की layer है, जिससे हमने एक envelope जैसा बनाया है, उसके अंदर हम genes रख लेते हैं जिन्हें हमें भेजना और liposuction कर देते हैं, इनसे fusion करा देते हैं animal cells का. Micro injection के through भी पहुंचा सकते हैं animals में अपना foreign gene. It is mostly efficient method of gene delivery into the cells. The DNA is directly injected into the nucleus using a fine glass capillary under the microscope. तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है डिलीवरी करने का सेल्स में. यहाँ डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया था न्यूक्लियस में, फाइन क्या ग्लास कैपिलरी माइक्रोस्कोप के अंदर देख के इंजेक्ट कर दिया था माइक्रोपिपेट के थ्रू. However, this method acquired great effort as each and every cell has to be injected individually. बहुत एफर्ट चाहिए होता है क्योंकि एक एक सेल को अच्छे से इंजेक्ट करा हुआ होना चाहिए. इलेक्ट्रोपोरेशन, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट पल्सेस से डीएनए को पहले तो बाहर एनवायरनमेंट में स्मॉल चैम्बर में रखा जाता है विद इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड टू अ स्पेशल पावर सप्लाई. पावर सप्लाई से स्पीकर को कनेक्ट किया जाता है. ब्रीफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस अप्लाइड which is thought to punch hole in the cell membranes, enabling the cells to take up the DNA. जिससे होल हो जाते हैं छोटे छोटे मेम्ब्रेन में, जिससे कि डीएनए अंदर चला जाता है. स्केल अप एनिमल सेल कल्चर प्रोसेस. Various scale-up method, including roller bottles with a microcarrier beads for adherent cell culture and spinner flask और suspension culture. Scale-up methods के लिए यहाँ पर roller bottles दिखा रखी हैं micro beads के साथ and microcarrier beads के साथ for adherent cell culture के लिए जो यूज होता है. Spinner flask और suspension culture के लिए spinner flask भी दिखा रखते हैं. हाँ, बायोरिएक्टर दिखा रखा है. बायोरिएक्टर में स्पीड कंट्रोल ऑन ऑफ बटन एंड द पायलट पायलट लाइट दिखा रहा है. मैग्नेटिक स्टीयर इज आल्सो शोन. मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग पेंडुलम for the steering of the culture medium, and then dented base is there. Cell suspension is filled in the bioreactor, and CO2 supplies the depth of the medium is greater than 50 millimeter, and escape of the CO2 sampling and feeding is done. ऐसे कभी नेट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है. कभी किसी से कनेक्ट हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर से होता है. 11 का So we were discussing about the culture vessels and bioreactors, and spinner cultures also goes there. जहाँ पर जो माइक्रो कैरियर बीड वाली बॉटल्स होती हैं वो इंक्रीज करती हैं नंबर ऑफ एडरेंट सेल पर क्लास एंड ईदर डेक्स्ट्रॉन और ग्लास बेस्ड and come in the range of densities के range में आती हैं. The beads are buoyant and therefore can be used with spinner culture flask.
The surface area available for the cell growth on these beads is huge. Microcarrier beads, when resuspended at the recommended concentration, provide an area of 0.24 meter square for every 100 ml of cell culture. Rapidly exhaust the medium, which may need replacing the medium during the culture. Spinner cultures are also used for scaling up the production of the suspension culture. They consist of a flat surface glass flask with suspended central Teflon paddle and that turn and agitate the medium. तो पेंडुलम जैसा मैग्नेटिक स्टिरर भी रहता है पैडल की तरह जो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है मीडियम को commercial version incorporate one from more the side arms for the sampling or decantation. The cells are not allowed to settle to the bottom of the flask and cells crowding occurs only at a very high density. Stirring the medium improves gas exchange. The cells crowding occur only at very high density. Stirring the medium improves gas exchange. Application of animal cell culture. Several medically important protein pharmaceuticals have been produced using animal cell culture, recombinant DNA technology. The important ones are listed in the table. These are the proteins which are produced by the animal cell culture. Animal cell lines which are used to produce these proteins are given. And with this, the chapter is finished. And these are proteins are given separately also here, which are factor 8, factor 7. These are the factors for the clotting factors. We can say tissue plasminogen activator, TPA is given. Factor 9 is erythropoietin is a glycoprotein hormone that is involved in the RBC production, erythropoiesis and wound healing. And हाइपोक्सिया शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ईपीओ बनता है caused by anemia and EPO is useful in the treatment of certain type of anemia such as anemia due to cancer, chronic renal failure, treatment of AIDS and the recombinant human EPO RHU EPO has been produced using Chinese hamster ovary cell lines. एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का तो पूरा एक फ्लो चार्ट दे रखा है यहाँ पर प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम प्लाज्मिन जो बनाती है और प्लाज्मिन से फिब्रिन क्लॉट जो बनता है टीपीए डिग्रेड डिसोल्यूशन ऑफ द ब्लड क्लॉट ईपीएस को डिसॉल्व कर लेती है ब्लड क्लॉट को ये इसका प्रॉपर्टी ये इसका वर्क होता है टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर का कि ये ब्लड क्लॉट को तोड़ती है एंड प्लाज्मिड में अगर हमने टीपीए की जीन इंसर्ट कर दी और इसे मैमल सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया तो मैमेलियन सेल्स पेट्री डिश में जब ग्रो होंगे तो ये टीपीए को रिलीज करेंगे और हम इसे अगर स्केल अप कर दे तो हमें टीपीए लार्ज अमाउंट में मिल जाएगी एबिडोमा टेक्नोलॉजी एबिडोमा टेक्नोलॉजी से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं ये भी फ्लो चार्ट में यहाँ दिया हुआ है आपको कि कैसे आप माइलोमा सेल्स से और माइलोमा सेल्स को जब आप टी सेल्स करेंगे तो हाइब्रिड बन जाएगा आपको ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जाएंगी जिनकी जो बताइए बिल्कुल स्पेसिफिक होंगी रेगुलर एंटीजन के लिए तो यू कैन हार्वेस्ट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्प्लीन सेल्स में से आप बी सेल्स को निकालते हैं माइलोमा सेल्स के साथ आप कैंसरस सेल के साथ फ्यूज करा के अनलिमिटेड अमाउंट में आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं जब आप उनको हैट मीडियम पे हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थायमाइडिन मीडियम पे जब आप इन्हें ग्रो कराते हैं तो आपको बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिल जाती हैं एंटीबॉडीज बारे में जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में हमें मदद करती हैं OKT3 एंटीबॉडीज एक्सेप्टेंट ग्राफ्ट के टिश्यू ग्राफ्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है ये OKT3 एंटीबॉडी है CD3 की इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग भी है ये जो इंट्रावेनसली दिया जाता है रिवर्स करने के लिए एक्यूट रिजेक्शन को ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सच एज हार्ट किसी में लगाया हो किडनी किसी में लगाई हो लीवर लगाया हो तो OKT3 फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है कि ट्रीटमेंट में पेशेंट के यूज होती है OKT3 एक्ट करती है बाय ब्लॉकिंग द फंक्शन ऑफ टी सेल्स व्हिच प्ले मेजर रोल इन द acute graft rejection. OKT3 binds and blocks the function of a cell surface molecule called CD3 in the T cell. The binding of OKT3 and to the T cell result in the following of the blocking of their function. After OKT3 therapy is over, T cell function usually returns to normal within a week. तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है किस तरह से OKT3 एंटीबॉडीज यूज होती है लीवर ट्रांसप्लांटेशन LT
Herceptin therapeutic monoclonal एंटीबॉडी हर्सेप्टिन ट्रांसुमैब भी बोलते हैं उसको, ट्रांसुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो अप्रूव करी हुई है थेरेपी के लिए, अर्ली स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की थेरेपी के लिए यूज करी जाती है। ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टू पॉजिटिव जो HER2 पॉजिटिव होते हैं, these cell surface receptors receive signals that help cells to grow and multiply. ये surface receptor ऐसे signals को receive करते हैं जो grow करते हैं. Septin work by attaching itself HER2 receptor, blocking them from receiving the growth signal. नहीं receive करेंगे तो cancers भी नहीं होंगे. Stem cell technology characterized by ability to renew themselves through mitotic division and differentiate into diverse range of specialized cells. जैसे हम प्लांट में पढ़ते थे, प्लांट के अंदर भी सारे सेल्स टोटली पोटेंट होते हैं, किसी भी टिश्यू से आप नया प्लांट बना सकते हो। ऐसे एनिमल में कुछ सेल्स होते हैं, सिर्फ कुछ कैटेगरी सेल्स जिनको स्टेम सेल बुलाता है। स्टेम सेल ही वो सेल है जिसको अगर आप डिफरेंशिएट करवाओ तो वो तरह तरह के हमारे डिफरेंट सेल्स में बदल सकते हैं। स्टेम सेल्स आर फाउंड इन ऑल multicellular organisms. Stem cells are good share in the stock market within which can either be multiplied self-renewal by getting bonus shares or sold to by good differentiate tissue like skin, blood, and interstitial epithelium are subject to continuous renewal through life. With this, our chapter is finished. I hope you have understood the chapter and you will be learning from your NCRT all the concepts. The stem cells are mostly found in the bone marrow tissue because the blood production occurs here. और स्टेम सेल्स बोन से आइसोलेट करके हम चाहे तो उससे न्यूरॉन बना सकते हैं, चाहे उससे ब्लड सेल्स बना सकते हैं, चाहे उससे हम स्केलेटल मसल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या चाहे हम उससे एपिडर्मल सेल्स स्किन बना सकते हैं, और कुछ स्मूथ मसल्स बना सकते हैं, कार्डियक मसल्स बना सकते हैं, आई का टिश्यू बना सकते हैं। तो स्टेम सेल्स इज वेरी यूज फॉर द मेडिकल इंडस्ट्री कि कोई से भी ऑर्गन्स को बनाकर उसे रिप्लेस किया जा सकता है फॉल्टी ऑर्गन्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, किस किस का जगह काम आ सकता है। द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इनर सेल मास से आईसीएम से एम्ब्रियो के ऑब्टेन किया जाता है, और इरेडिएटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के प्रेजेंस में मेंटेन किया जाता है, और their stem cells are retain the characteristics of founder cells even after prolonged culture and extensive manipulation. ये founder cell के character को retain करते हैं। Reintegrate fully into embryogenesis if transferred, और ये वापस से reintegrate हो जाते हैं बड़े embryo में जब इन्हें transfer किया जाता है। Could be used to create chimeric mice by taking yes from the black mouse and implanted into the embryo of albino mouse by तो हम व्हाइट और ब्लैक माउस को मिक्स करके कैमेरिक माउस भी बना सकते हैं। द प्रोजेनी डेवलप्स इन कलर ब्लैक एंड व्हाइट कैमेरा नाम का प्रोग्राम बन जाएगा to maintain a stable euploid karyotype, could self-renew without differentiated culture. जीन नॉकआउट भी कराई जा सकती है and make other precise genetic modification in the mouse embryonic stem cells. embryonic stem cells में कोई जीन नॉकआउट करा के हम ह्यूमन डिजीज के लिए मॉडल तैयार कर सकते हैं। सच माउस मॉडल्स हैव बीन एक्सट्रीमली यूजफुल, नॉट ओनली ये जेनेटिक बेसिस भी हैं डिजीज का जानने के लिए, एंड ऑल्सो इन सर्च ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक मॉडलिटी। कैसे हम इनको के लिए दवाइयां सर्च करेंगे वो भी हमें ये बताते हैं। 1988 में जेम थॉमसन ने टेक्निक यूज करी आइसोलेट करने की ग्रोथ ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल्स इन द कल्चर इन ह्यूमंस एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द ह्यूमन germ cell before they initiate meiosis and culture in a petri dish. Specialized cells can be grown in the presence of a specific growth factors such as fibroblast growth factors and platelet derived growth factors. The embryonic stem cells have open new possibility for stem cell therapy in the clinic. So यहाँ पर आप देख रहे हो कैमेरिक माउस बनाने की प्रोसेस का फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि एम्ब्रियो जो कि ब्लैक माउस है उसके एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से सेल ले लिए,
का कल्चर करा लिया। होस्ट का एल्बिनो व्हाइट माउस से भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ले लिया, उनका कल्चर करा लिया। माइक्रो इंजेक्शन कर दिया ब्लैक माउस के कुछ एम्ब्रियो स्टेम सेल के सेल्स का व्हाइट माउस के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में। और माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू द एम्ब्रियो, इंजेक्शन embryos into the uterus of the surrogate mother के यूट्रस में ये एम्ब्रियो डाल दिया और chimeric mouse बन गए। अदर एप्लीकेशन एनिमल स्टेम सेल्स की, यहाँ टिश्यू इंजीनियरिंग दी हुई है। रिसेंट एडवांसेस फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस हैव गिवन राइज टू इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू इंजीनियरिंग भी अब हम कर सकते हैं। एम ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग इज टू सप्लाई बॉडी पार्ट्स फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू ऑर्गन विदाउट कॉजिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फेक्शन एंड म्यूटिलेटिंग अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। टिश्यू इंजीनियरिंग पोटेंशियली offer dramatic improvements in the low-cost medical care for hundreds of thousands of patients annually. Large-scale culturing of human or animal cell, including skin, muscle, cartilage, bone marrow, and टीएल सेल में प्रोवाइड रिप्लेस डैमेज कंपोनेंट जो है हमारी बॉडी के, उनको टिश्यू को इंजीनियर करा के उन्हें वापस रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे किसी का रेसलिंग के अंदर ईयर डैमेज हो गया तो उसका ईयर बनाकर वापस उस पेशेंट को ईयर दिया जा सकता है। इस तरह के इम्प्लांट्स फंक्शन होंगे न्यू ऑर्गन्स की तरह पेशेंट में, और इनमें कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल may also provide a source of the cells, tissues, and organs for xenograft. Cells from biopsy, monolayer cell culture, expanded cells, culture on a 3D polymeric scaffold, generation of a graft. ग्राफ्ट बन जाता है टिश्यू इंजीनियरिंग से। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे पहले पेशेंट से सेल्स ले लिए हैं, मोनोसेल कल्चर करवाया, उनका सेल्स को एक्सपैंड करवाया है, 3D पॉलीमरिक स्कैफोल्ड से ग्रो करवाया है और उससे फिर ग्राफ्ट जनरेट किया है, फिर उस ग्राफ्ट को सेल्स के अंदर डाल दिया गया है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लास्ट में इस चैप्टर के बस एप्लीकेशंस थे एनिमल सेल कल्चर के, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। सो I would like to end the lecture here, and please share and subscribe my channel with the friends who are reading biotechnology class 11th and 12th. Thank you.